ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਵਰਲਡ ਪੋਸਟ ਡੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਲਡ ਪੋਸਟ ਡੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟ ਟੂ ਰਿਕਵਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 1874 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟਲ ਵੀਕ ਹੈ ਜੋ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਡੇ ਸੈਟਰਡੇ ਮਈ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਈ ਔਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਗ ਫਲਾਈ ਸੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਬਰਡ। ਵਰਲਡ ਐਗ ਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਰਾਈਡੇ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਈਟ ਯੋਰ ਐਗ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 5ਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਔਰ ਫਰੋਡਸ ਐਂਡ ਸਕੈਮਸ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ। ਈਸ਼ਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਫਾਸਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਰਨ ਸਕੋਰ ਕਰੇ ਨੇ 16 ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਕੋਇਨਸਵਿਚ ਕੁਬੇਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਕੋਇਨਸਵਿਚ ਕੁਬੇਰ ਦੁਆਰਾ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। OECD ਦੁਆਰਾ 15% ਟੈਕਸ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 2023 ਤੋਂ। KV ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੁਆਰਾ CEO ਸੀਗੇ ਜੋ ਸੀ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੈਨੂਅਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੀਜਨ ਗਰਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਾਂਧੀਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਲਾਈਟਸ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਧਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬੈਂਕ ਥ੍ਰਿਸੂਰ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RBI ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। RBI has announced to open 4th cohort under regulatory sandbox ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੌਥਾ ਕੋਹੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੋਡ। ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰੋਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟਸ, ਕ੍ਰੋਸ ਬੋਰਡਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਐਂਡ MSME ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੋਹੋਰਟ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। RBI ਦੁਆਰਾ ਮੋਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਰਿਵਿਊ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅਨਚੇਂਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ, MSF, BR ਬੈਂਕ ਰੇਟ, MSF ਮਾਰਜਿਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੇਟ, CRR ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ SLR ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਜੋ ਰਾਜਾਚਾਰੀ ਨਾਸਾ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਕ੍ਰਿਊ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਹੈੱਡ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। ਵਾਪਿਸ ਆਉਣਗੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਤੀਰਥ ਰਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਰੀ ਰਾਓ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਗਾਂਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਗਾਂਧੀ ਦ ਰੂਟਸ ਐਂਡ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕੋਨੋਮੀ ਆਫ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ। ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਗੇ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ JRD ਟਾਟਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਜਾਵਾੜਾ ਗੋਪਾਲ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰਾਏ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਰਾਏ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। आईटीबीपी पर्सोनल एंड लद्दाख पुलिस और आईटीबीपी पर्सोनल्स ने 6000 मीटर की माउंटेन की चढ़ाई की और उसका नाम रख दिता है नोरबू वेंगडू पीक आईटीबीपी के पर्सोनल के नाम देते। कियारा अडवाणी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सैनको गोल्ड एंड डायमंड। गवर्नमेंट द्वारा कमेटी बनाई गई है पेंडोरा पेपर्स के रिलेटेड लोग इंडिविजुअल्स और कोऑपरेट एंटिटीज़ की की करन दे लई जांच करन दे लई किन्हां दी चेयरमैनशिप के अंडर CBDT के चेयरमैन JB मोहापात्रा की चेयरमैनशिप के अंडर। पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री सरबानंद सैनोवाल लवे है, इन्होंने लॉन्च किया माई पोर्ट एप्लीकेशन कोलकाता दे विच माई पोर्ट्स एप्लीकेशन। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया सिविल एविएशन मिनिस्टर ने इन्होंने डून ड्रोन मेला फ्लैगड ऑफ किया देहरादून उत्तराखंड दे विच। फिशरीज एनिमल हसबेंडरी और डायरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने जो इन्होंने रिवर रैंचिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। रिवर रैंचिंग प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना के अंदर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर 4 दिन की विजिट से सी किर्गिस्तान रिपब्लिक कजाकिस्तान और आर्मीनिया की। इत्थे इन्होंने 6th मिनिस्ट्रीयल मीटिंग नूं अटेंड किया CICB की कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरैक्शन कॉन्फ्रेंस एंड बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है जी। इसी दे विच एक डिक्शनरी नूं भी लॉन्च किया गया, एक डिक्शनरी जिस दे विच कॉमन वर्ड्स ने हिंदी और हिंदी और जो किर्गिस्तान की भाषा है उत्थे दे जो कॉमन वर्ड्स ने उन्होंने एक डिक्शनरी नूं लॉन्च किया। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, फिर भी एज ए नॉलेज याद रखेंगे। इंडिया क्रोशिया ने एग्रीमेंट साइन किया आयुर्वेदा के फील्ड के विच, या कह सकते हैं ट्रेडिशनल मैडिसिन सिस्टम के फील्ड के विच। यूके ने कोविड शील्ड लगे हुए फुली वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स नूं अप्रूवल दी है कि उन्होंने क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। एयरफोर्स म्यूजियम अनाउंस किया गया त्रिवेंद्रमपुरम केरला के अकलम टूरिस्ट विलेज दे विच सैटअप किया गया इन द शेप ऑफ एयरक्राफ्ट। लोटस पेटल फाउंडेशन गुरुग्राम की जो लोटस पेटल फाउंडेशन है इसने महात्मा अवार्ड जीते सोशल इंपैक्ट के लिए। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ऑफ वेस्ट बंगाल शुरू की इन्होंने घूम फैसटिवल की शुरुआत इन्हों द्वारा की गई। इंडिया डेनमार्क ने 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं ग्राउंड वाटर रिसोर्सिस के रिलेटेड, ट्रेडिशनल नॉलेज के रिलेटेड और नैचुरल रेफ्रिजरेंट्स के रिलेटेड। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे द्वारा चीपी एयरपोर्ट नूं इनॉग्रेट किया गया किथे सिंधु दुर्ग दे विच। नोबल पीस प्राइज़ की अगर आप गल करते हैं ये मैरिया रेसा दिता गया है जो कि फिलीपींस तो बिलोंग करते हैं, और दमित्री मुरातोव जो कि रशिया तो बिलोंग करते हैं। फिलीपींस तो बिलोंग करते हैं मैरिया रेसा, दमित्री मुरातोव बिलोंग करते हैं रशिया तो, यानी कि डिस्कस करांगे आप MD मैरिया दमित्री। ठीक है जी, किस दे लई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन दे। ठीक है, इस तो अलावा गल करते हैं आप सारे के सारे नोबल प्राइज़ डिस्कस कर सकते हैं, अपना कर चुके हैं। पेंडिंग है अपना सिर्फ इकनॉमिक्स वाला पेंडिंग है, कल के सैशन में भी डिस्कस करांगे। अनाउंस हो चुके हैं 3 लोगों को अवार्ड दिता गया है। ठीक है, लेकिन अज बाय मिस्टेक ऐड करना रह गया, कल के सैशन के इसनूं ऐड करांगे। ठीक है जी, डिस्कस करांगे इकनॉमिक्स का नोबल प्राइज़ और बाकी के नोबल प्राइज़ नूं भी एक बार फाइनली रिवाइज करांगे। नैक्सट चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट न्यूज़ है अपनी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। 11 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कल के दिन 11 अक्तूबर को ऑब्जर्व किया गया, हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रही है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, यह इस दिन की थीम रही है।
इस तो इलावा अगर नैशनल गर्ल चाइल्ड डे की गल करते हैं तो 24 जनवरी को नैशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑबजर्व किया जाता है। वर्ल्ड मैंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मैंटल हेल्थ डे की अगर आप गल करिए तो यह 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया, यह भी 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। इसकी थीम रही है मैंटल हेल्थ इन एन अनईक्वल वर्ल्ड, मैंटल हेल्थ इन एन अनईक्वल वर्ल्ड। नैशनल पोस्टल डे, नैशनल पोस्टल डे 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया, नैशनल पोस्टल डे 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्तूबर और नैशनल लैवल के उत्ते 10 अक्तूबर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट डे ऑबजर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी यह 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। थीम रही है वूमेन सेंटेंस्ड टू डेथ एन इनविजिबल रियलिटी, वूमेन सेंटेंस्ड टू डेथ एन इनविजिबल रियलिटी। वर्ल्ड होमलेस डे, वर्ल्ड होमलेस डे 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया, वर्ल्ड होमलेस डे 10 अक्तूबर को ऑबजर्व किया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है यूनेस्को, यूनेस्को की गल करते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फॉर एग्जांपल नीति आयोग की रिसेंटली पूछ ली गई थी एक्साइज इंस्पैक्टर के एग्जाम के। ठीक है जी। इसने स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जारी की है, इसने स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 इंडिया के लिए जारी की है, जिसका टाइटल रहा नो टीचर नो क्लास, नो टीचर नो क्लास। ये बेसिकली टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन के उत्ते बेस्ड है, यानी कि इसकी थीम की है, इसकी थीम है टीचर्स ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इट ओनली 19% ऑफ स्कूल्स इन इंडिया हैव इंटरनेट, सिर्फ 19% स्कूल्स दे विच इंडिया दे इंटरनेट है। चंडीगढ़ दिल्ली केरला पंजाब और तमिलनाडु, चंडीगढ़ दिल्ली केरला पंजाब और तमिलनाडु ये ऐसी स्टेट्स ने, ये ऐसी स्टेट्स ने जिथे वूमेन टीचर्स की हाईयर मात्रा है, जिथे ज़्यादातर मात्रा है वूमेन टीचर्स की। त्रिपुरा असम राजस्थान झारखंड और बिहार, त्रिपुरा असम राजस्थान झारखंड और बिहार ये ऐसी स्टेट्स ने जिथे वूमेन टीचर्स की मात्रा बहुत घट है। ठीक है जी। यार नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड 6S कैंपेन। PNB पंजाब नेशनल बैंक की अगर आप गल करते हैं, इस द्वारा 6S कैंपेन की शुरुआत की गई। पंजाब नेशनल बैंक को किन्ना द्वारा बनाया गया सी पूछा जाता है, फाउंडिंग मैंबर्स के विचों लाला लाजपत राय का नाम इंपॉर्टेंट बने। इसने इस दे विचों 6S का मतलब की है स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क, शिकार, संकल्प और स्वागत। नेक्स्ट है मर्सिडीज ड्राइवर वोल्टेरी बोटास, मर्सिडीज के जो ड्राइवर ने वोल्टेरी बोटास फिनलैंड तो बिलोंग करते हैं, फिनलैंड तो इन्होंने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते। आप डिफरेंट ग्रैंड प्रिक्स टाइटल डिस्कस किए हुए हैं। इस साल का इन्हों का पहला ग्रैंड प्रिक्स टाइटल है वोल्टेरी बोटास का, इस साल का पहला ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत्या गया टर्किश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। ठीक है। वैसे अगर आप गल करते हैं होर सिंगुलर वाले नाम किहड़े ने, सर्जियो पेरिस ने, सर्जियो पेरिस द्वारा अजरबैजान जीत्या गया सी। इस तो इलावा सिंगुलर की अगर आप गल करते हैं इस्तेबान ओकोन द्वारा, इस्तेबान ओकोन ने हंगरीयन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया सी।
हंगरीयन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल इस्तेबान ओकॉन। डैनियल रिकार्डो के बारे पूछा जा सकता है, इन्होंने इटैलीयन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीत लिया। डैनियल रिकार्डो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, यानी कि इस साल 4 नाम अपने हुण तक ऐसे ने जिन्होंने एक सिंगुलर ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते, इस करके इन्हों के नाम इंपॉर्टेंट बननगे। ठीक है, इस तो इलावा इस साल सब तो ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीते ने? मैक्स वर्सेटेपन ने जीते, मैक्स वर्सेटेपन ने जीते। ठीक है जी। लुइस हैमिल्टन द्वारा कितने जीते ने? लुइस हैमिल्टन ने इस साल 5 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जीते ने और ओवरऑल करियर दे विच इन्हां दे 100 टाइटल पूरे हो चुके हैं। ओवरऑल करियर दे विच इन्हां दे 100 टाइटल पूरे हो गए। ठीक है, याद रखना। ए क्यू खान कौन सीगे? साइंटिस्ट सीगे, एक साइंटिस्ट सीगे जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लीयर प्रोग्राम के फादर मन्ने जाते थे। पाकिस्तान के न्यूक्लीयर प्रोग्राम के फादर मन्ने जाते सी ए खान। इंपोर्टेंट नाम रहेगा। पाकिस्तान इन्हां दी बदौलत, इन्हां दे कॉन्ट्रीब्यूशन के बदौलत पाकिस्तान पहली ऐसी अरब कंट्री बनी सी जिसने न्यूक्लीयर कैपेबल हुई सी, जिहड़ी कि न्यूक्लीयर कैपेबल बनी सी। पहली ऐसी इस्लामिक कंट्री बनी सी। ठीक है, पाकिस्तान। तो इसके फाउंडर कौन से या फादर कह सकते हैं न्यूक्लीयर प्रोग्राम के पाकिस्तान के ए खान। नैक्सट है नरेंद्र राणा जो कि आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, इन्होंने हैड कोच अपॉइंट किया गया है मैनस बॉक्सिंग टीम के। मैनस बॉक्सिंग टीम के जो इंडिया की मैनस बॉक्सिंग टीम है, इसके हैड कोच कौन अपॉइंट किए गए हैं? नरेंद्र राणा। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ recognized access to a clean and healthy environment as a fundamental right। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल ने क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट का एक्सेस होना, यानी कि किसी भी पर्सन के नज़दीक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना उसका एक फंडामेंटल राइट है। ये डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का हैडकुआटर पूछा जाता है तो जेनेवा के विच है। इसका हैडकुआटर कितने है? जेनेवा के विच। नेक्स्ट है इंडिया फिनिशिज विद 30 मेडल्स। इंडिया ने 30 मेडल जीते ने ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपीयनशिप के। इंडिया स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन के वर्ल्ड जूनियर चैंपीयनशिप के जो कि पेरू लीमा के ऑर्गेनाइज की गई है, इस दे विच पहले नंबर पर रहा और टोटल मैडल्स जीते ने 30 मेडल्स। 13 गोल्ड ने, 11 सिल्वर ने और 8 ब्रॉन्ज मेडल्स। ठीक है जी। USA की गल करते हैं, इसने 20 मेडल जीते ने और दूसरे नंबर पर रहे। USA दूसरे नंबर पर रहा, 20 मेडल जीते। नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2021। T20 वर्ल्ड कप 2021 पहली बार DRS नू इस्तेमाल करेगा। DRS का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म के DRS के नाम तो ही जानिया जाता है। मैच के रिव्यू करने के लिए डिसीजन रिव्यू सिस्टम की शुरुआत की गई थी DRS की। तो T20 मैचेस के पहली बार इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कितने? UAE और ओमान के जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप है, UAE और ओमान होस्ट करेगा। पहले इसमें इंडिया द्वारा होस्ट किया जाना सी, हुण इसमें UAE और ओमान होस्ट करनगे। तो याद रखांगे पहली बार इस DRS का इस्तेमाल किया जाए। केरला राइटर बेनियामीन हैज़ बीन चूजन फॉर वलियालार रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड। वलियालार रामा वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड है जो यह किन्हां नूं दिता जाएगा? बेनियामीन नूं। बेनियामीन एक केरला के राइटर। नेक्स्ट है सीनियर इंडियन कैनेडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर। इंपॉर्टेंट नाम रहेगा डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर। डॉक्टर हरप्रीत एस कोचर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कैनेडा।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਐਸ ਕੋਚਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਔਰੀਜਨ ਨੇ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇ। DRDO ਦੇ ਹੈਡ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼, DRDO ਦੇ ਹੈਡ ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਰੈਡੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਿਆਭੱਟਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਬਾਏ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ASI है, इसने इस साल का आर्यभट्टा अवार्ड किसनों दिता है? जी सतीश रेड्डी ने दिता। जी सतीश रेड्डी कौन ने? DRDO के हैड ने, चेयरमैन ने। कित्थे दिता गया अवार्ड इन्हों? UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर दे विच, UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर दे विच। भारत बिल पेमेंट सिस्टम द्वारा BSNL ਨੂੰ फर्स्ट टेलीकॉम ऑपरेटर नामित किया गया इन द मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज कैटेगरी ऑन NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। बेसिकली NPCI द्वारा NBBL बनाया गया सी। NBBL है NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक है जी। किस दे लई? ताकि जो डिफरेंट कैटेगरी के रिचार्ज बिल्स ने इंडिया के, किसी के इलैक्ट्रिसिटी बिल्स ने या किसी की मोबाइल रिचार्जिज ने या इस तरीके के जो बिल्स ने पेंडिंग ने या जो भर सकते हैं, तो इन्हों भरया किस हिसाब ना जाएगा, डिजिटल मोड के उत्ते भरे जाने के लिए इसकी शुरुआत की, ठीक है। हुण इस दे विच टैलीकॉम ऑपरेटर यानी कि मोबाइल रिचार्जिज के लिए जो ऐड किया गया, पहला टैलीकॉम ऑपरेटर किसनों ऐड किया? BSNL नूं किया। पहला टैलीकॉम ऑपरेटर BSNL ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सुचेता सतीश। 16 साल की लड़की है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दुबई दे विच बाय सिंगिंग इन 120 लैंग्वेजिज। 120 लैंग्वेजिज 120 डिफरेंट लैंग्वेजिज दे विच गाना गा के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश 16 साल की लड़की है, कित्थे बनाया? दुबई दे विच यह रिकॉर्ड इन्हां द्वारा बनाया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी, इन्हां द्वारा इंडियन स्पेस एसोसीएशन नूं लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस एसोसीएशन नूं लॉन्च किया गया। इट्स फाउंडिंग मैंबर्स आर भारती एयरटेल, नेल्को, L&T, मैपमाई इंडिया, वन वेब, वेलचंद नगर इंडस्ट्रीज़ और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। बेसिकली डिफरेंट जो प्राइवेट कंपनीज़ और पब्लिक कंपनीज़ ने इन्हों इकट्ठा काम करवाने के लिए इंडियन स्पेस एसोसीएशन की शुरुआत की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इस दे विच जो फाउंडिंग मैंबर्स है, इसमें बनाने वाले मैंबर्स कौन ने? एक तो भारती एयरटेल कंपनी है, नेल्को कंपनी जो कि टाटा के अंडर है, टाटा की सबसिडरी है, L&T लार्सन एंड टर्बो कंपनी, मैपमाई इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, वन वेब कंपनी, वालचंद्र नगर इंडस्ट्रीज़ और अनंत टेक्नोलॉजीज़ याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च फर्स्ट एवर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना नूं लॉन्च करनगे प्राइम मिनिस्टर 13 अक्तूबर नूं। कल दे दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति योजना नूं लॉन्च करनगे। ये बेसिकली की करेगी 16 डिफरेंट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। इस दे नाल 16 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और 7 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर ने जो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे ताकि जो प्रोजेक्ट्स ने उन्होंने प्लैनिंग की जा सके। नेक्स्ट है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ के लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कौन ने? दर्शना दरदोश। इन्होंने की किया? एक नवा वर्जन लॉन्च किया सॉन्ग का, मिले सुर मेरा तुम्हारा। रेलवेज़ के एम्पलॉयज़ और ऑफिसर्स द्वारा इसनों गाया गया, इस सॉन्ग नूं रिलीज़ किया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज़ दर्शना जरदोश द्वारा। नाम इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना।
इंडियन नेवी वुड पार्टिसिपेट इन सैकेंड फेज़। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट रहेगी कि इंडियन नेवी दे मालाबार एक्सरसाइज दे विच पार्टिसिपेट किया है। मालाबार एक्सरसाइज है जो कित्थे ऑर्गेनाइज की गई है, बे ऑफ बंगाल दे विच कीती जा रही। मालाबार एक्सरसाइज दो फेजिज दे विच, दो हिस्सों दे विच ऑर्गेनाइज की गई। पहला फेज़ अगस्त दे विच होया सी, जिहड़ी कि ऑर्गेनाइज की गई सी फिलीपीनस सी दे विच। फिलीपीनस सी दे विच कंडक्ट की गई सी, 25वां एडिशन है मालाबार दा। और दूसरा फेज़ है जो बे ऑफ बंगाल दे विच कंडक्ट किया जा रहा है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेट कर रही है मालाबार एक्सरसाइज दे विच। किहड़ी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करदियां ने? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, यानी कि क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज है जो किहड़ी किसदी एक्सरसाइज है? क्वाड ग्रुप की एक्सरसाइज है। ठीक है जी। सिमिलर तरीके नाल मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की ही अगर आप गल करते हैं तो मिलन एक्सरसाइज याद रखांगे आप। मिलन एक्सरसाइज इंडियन नेवी होस्ट कर रही है, इंपोर्टेंट बनेगी। 46 कंट्रीज पार्टिसिपेट करनगियां मिलन एक्सरसाइज दे विच। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू इंक्रीज द यूनिट कॉस्ट ऑफ डीप सी फिशिंग वैसल्स। जो डीप सी फिशिंग वैसल्स ने पाल्क बे स्कीम के अंडर, पाल्क बे स्कीम के अंडर उन्होंने प्राइस में इंक्रीज करने के लिए अनाउंसमेंट की है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है जी। अच्छा, पाल्क बे तो एक चीज़ याद आती होएगी, तमिलनाडु। तमिलनाडु पाल्क बे तो एक चीज़ याद आएगी कि इंडिया का कुछ पहला इत्थे बनाया जा रहा है। इंडिया का कुछ पहला इत्थे बनाया जा रहा है, तो कमेंट बॉक्स में भी तुसीं दसना है कि की बनाया जा रहा है। ठीक है। और एक मैं डेली चैक कर रहा कि कुछ आंसर्स देना बंद हो गए हैं, क्वेश्चन के आंसर थोड़े दोबारा नहीं दिते जा रहे। काइंडली क्वेश्चन के आंसर दिया करो। अगर तुसीं नहीं चाहते कि क्वेश्चन पूछे जान तो यह भी कमेंट बॉक्स में दस दो, आप क्वेश्चन पूछने भी बंद कर देंगे। कोई दिक्कत वाली गल नहीं, मैं खुद दस दिया करांगा आंसर्स। ठीक है। पर अगर तुसीं चाहते हो तो काइंडली क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो किसी भी क्वेश्चन में अगर मैं पूछदा। ठीक है। हम क्वेश्चन का आंसर देना कि पाल्क बे दे विच की बनाया जा रहा है इंडिया का पहला। ठीक है। अज दे लई बस इतना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।